दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा भी संदीप भटनागर में बहुत बहुत ही स्वागत है। और डोनाल्ड ट्रंप जो नॉमिनेटेड है प्रेसिडेंटशिप के लिए यूएसए के, और वो जनवरी में अपनी शपथ लेंगे, उसके पहले उन्होंने अपनी टीम बनाना शुरू कर दिया है। और उस टीम में बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो कि 2026 तक अपनी रिपोर्ट देगी। उसका नाम है डॉज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। ये चेक करेगी कि गवर्नमेंट की एफिशिएंसी, वर्किंग एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए और जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो हटाए जाएं। तो उसमें कई मिनिस्ट्रीज बंद हो सकती हैं, कई लोगों का ट्रांसफर हो सकता है, कई कमिटीज नई बन सकती हैं और कई पुरानी कमिटीज बंद हो सकती हैं। ये मुझे लगता है कि एक तरीके का इंडिया में जो नीति आयोग है उसी के टराई पे ये एक कमेटी बनाई है। इंडिया में नीति आयोग एक रेगुलर चीज है जो कि सालों साल चलती आ रही है और चलती रहेगी। लेकिन यूएस में जो ये कमेटी है इसका कार्यकाल केवल 2 साल का है और 2 साल में इनको रिपोर्ट देनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो 2 मेन मेंबर्स जिनके अंडर में ये कमेटी काम करेगी वो है विवेक रामास्वामी और एलन मस्क। तो दोस्तों, ये भी इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। लेकिन आज जो हम बात करना चाह रहे हैं, हम बात करना चाह रहे हैं एक ऐसे इंसान की जो कि इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है और उसको यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया है एनएसए के लिए। दोस्तों, ये एनएसए कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इस समय एनएसए कौन है? जैक सलिवन। उनको रिप्लेस करेंगे माइक वॉल्ट्ज। तो माइक वॉल्ट्ज के आने पे इंडिया पे उस चीज का क्या असर होगा, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अच्छा, उससे पहले अब एक छोटा सा वीडियो देखिएगा माइक वॉल्ट्ज का, जो कि उन्होंने एक मैसेज दिया था इंडियन डायस्पोरा को। अपनी जब इलेक्शन कैंपेन हो रही थी तो वो पर्सनली नहीं जा पाए थे, तो उन्होंने वीडियो मैसेज दिया। तो पहले वो मैसेज देखिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। Hello, everyone. Congressman Mike Waltz here, the co-chair of the U.S.-India caucus in the House of Representatives. So sorry I couldn't be with you, but I wanted to send you a message to just let you know how excited I am about the tremendous momentum in the U.S.-India relationship between the oldest democracy in the world and the largest democracy in the world. I had the opportunity to come out for the 70th anniversary of Indian independence with my co-chair, Representative Ro Khanna from California. Heard an incredible speech from Prime Minister Modi at the foot of the Red Fort. It was hot in August, but just an amazing event. And I think the momentum is just continuing with the Prime Minister's visit and address to the U.S. Congress, now with ISET and IndusX. New relationships and momentum with the Boeing and Tata co-production of Apache helicopter fuselages, existing technologies, of course, but things that we're doing together, old technologies like ship repair, but absolutely vital to keep our maritime and sea lanes open and free, and then new technologies, all kinds of co-production opportunities, and of course quantum and burgeoning AI and improving how we collate and use data, the data centers, the incredible energy needs that are needed for all of this as we head into the 21st century. And the bottom line is, in my view, this is the most important relationship of the 21st century. This will determine whether this is a century of light or a century of darkness. So I look forward to working with all of you. Consider my office and my team an open door to further this relationship as we press forward in keeping the Indo-Pacific free and open and protecting Indian sovereignty, particularly on the line of control, and ensuring that the world that we leave behind for our children and grandchildren is in line with our shared values. So I look forward to seeing all of you soon. Thank you so much. Have a great
series of meetings and panels and engagements. And let's, I can't say it again, the buzzword is momentum, but let's keep the momentum going. तो दोस्तों, आपने ये देखा ना कि उनका एक सेंटेंस मुझे इतना अच्छा लगता है कि वो कहते हैं कि 21st सेंचुरी इज ए फ्रेंडशिप सेंचुरी बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, जो एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और एक सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। और ये जो फ्रेंडशिप है ये डिसाइड करेगी कि आगे का वक्त उजाले में होगा या अंधकार में होगा। दोस्तों, वैसे इनका तो मिलिट्री बैकग्राउंड है और ये कर्नल रह चुके हैं, अफगानिस्तान में रह चुके हैं और इसलिए उनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा ही है। इनके जो फादर थे वो भी आर्मी में थे, तो इनके पास एक तरीके का बहुत एक्सपीरियंस है। जैसे हमारे एनएसए हैं अभी डोभाल साहब, वो आईपीएस अफसर हैं, उन्होंने लाइफ लॉन्ग पुलिसिंग की है, इसलिए वो ऑन द जॉब, आज भी वो ऑन द जॉब है। और इसी तरीके से ऐसे लोगों को, और ये मैं बहुत अच्छी बात मानता हूं डोनाल्ड ट्रंप की, कि वो एक्सपर्ट्स लेके आ रहे हैं, उस लाइन के एक्सपर्ट्स लेके आ रहे हैं। और जैसे इंडिया में जैसे जयशंकर साहब हैं, वो फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं। तो इसी तरीके से जो माइक वॉल्ट्ज है, ये भी एक एक्सपर्ट है। अब देखिए, मैं 3-4 चीज के डिस्कस करता हूं जो कि इंडिया का फर्क पड़ने वाला। देखिए, इंडिया क्योंकि माइक वॉल्ट्ज बेसिकली है तो यूएस के, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी वही उनको आगे बढ़ानी है। अगर बाई चांस खुदा ना करता यूएसए की या ट्रंप की पॉलिसी होगी कि इंडिया को प्रेशराइज करके रखना है, इनको आगे नहीं बढ़ने देना है, तो बट नेचुरल है कि माइक वॉल्ट्ज भी उसी की तरह एक्ट करेंगे, ये बट नेचुरल है। लेकिन जो आज का सिनेरियो है और जो माइक वॉल्ट्ज का पास्ट था, जो उन्होंने पास्ट में बोला है, मैं उसके बारे में आना चाहता हूं। अच्छा, अफगानिस्तान में भी उन्होंने भारत का जो रोल था उसकी बहुत तारीफ की थी। जब ये स्पेशल फोर्सेस में थे, वहां पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने ये देखा था कि कैसे भारत वहां पर डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है। भारत के एफर्ट जैसे मतलब स्कूल बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, तो अच्छा वहां की इकोनॉमी और लाइफ स्टाइल में कैसे इंडिया ने बढ़ावा दिया, वो वॉल्ट्ज की नजर में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था। ये भी एक वजह है कि वो भारत को एक वेरी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव पार्टनर के तौर पे देखते हैं। और अच्छा, दूसरा क्या है कि यूएस इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप को भी इनका काम है प्रमोट करना। ये इंडियन कॉकस के पार्ट है और वॉश ने हमेशा ही यूएस इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप को प्रमोट करने के लिए ही प्रयत्न किया है। और उन्होंने ओपन प्लेटफॉर्म्स पे भी बोला है कि अगर दोनों देश मिलिट्री और इंटेलिजेंस शेयरिंग और एक्सरसाइजेस में कॉपरेशन बढ़ाते हैं तो ये दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होगा और ग्लोबल स्टेबिलिटी में भी ये बहुत काम करेगा। अच्छा, उनका ये बिलीव भी है कि भारत और अमेरिका मिलके एशिया में स्टेबिलिटी ला सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है। और स्पेशली ये चाइना का जो एग्रेशन हुआ है, दोस्तों इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये जो चाइना ने एग्रेशन किया है, ये एक तरीके से चाइना के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये आप मेरी बात मान के ले लीजिए। और जो आज के दिन में यूएस का कॉपरेशन इंडिया के साथ हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा हाथ है चाइनीज एग्रेशन का 2020 का। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये विद पाकिस्तान की बात करते हैं कि इंडिया की सिक्योरिटी और कश्मीर पे भी इनका स्टैंड बहुत क्लियर है। वो कहते हैं कि भारत की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी पर भी उनका यही कहना है और उनका मानना है कि भारत को अपनी सिक्योरिटी पे पूरी तरह से कंट्रोल होना चाहिए और कश्मीर में भी भारत के जो स्टैंड है उसका वो पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। और ये बात उनके और भी करीब आती है कि इंडिया की पॉलिसी के साथ कि जो यूएस में इंडिया का डायस्पोरा है और
डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, उसके लिए भी ये बहुत पॉजिटिव काम करते हैं। अच्छा, और दूसरा इनका इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी क्या है, उसके लिए भी ये सपोर्ट करते हैं। उनके अचीवमेंट, जो इंडियन डायस्पोरा है उनका जो अचीवमेंट है, उसके लिए भी इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और अप्रिशिएट किया है। उन्होंने कई बार इंडियन अमेरिकन इवेंट्स में शामिल हुए हैं और अपना मैसेज दिया है कि वो इंडियन डायस्पोरा के साथ खड़े हुए हैं और उनकी सक्सेस स्टोरीज को अमेरिका के ग्रोथ का हिस्सा मानते हैं। ये तो दुनिया जानती है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे आके ये बात बोलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। और दूसरा, ये क्वाड और जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, उसको कहते हैं कि पूरी तरीके से स्ट्रांग, वो क्वाड्स को और पावरफुल बनाएंगे। और अमेरिका और भारत की पार्टनरशिप है, उसको सबसे ज्यादा स्ट्रांग बना के, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में जो स्टेबिलिटी है और पीस है वो बनी रहे। तो ये सब अच्छा, मैं अभी आपने देखा होगा जयशंकर साहब ने 3-4 दिन पहले बोला था कि वर्ल्ड की कई कंट्रीज नर्वस है ट्रंप के प्रेसिडेंटशिप के लिए, लेकिन इंडिया इज नॉट नर्वस। इंडिया इसीलिए नर्वस नहीं है क्योंकि वो जानता है कि जो भी लोग आएंगे, नॉमिनेट होंगे, वो प्रो इंडिया हैं। इवन जब ट्रंप प्रो इंडिया होगा तो उसकी जो टीम होगी वो बट नेचुरल है कि वो भी प्रो इंडिया होगी। अगर ट्रंप का कोई चेंज ना हो जाए इंडिया के प्रति उसका स्टैंस। और एक बात मैं आपको यहां पे बताऊं, मैं दिल की बात बताता हूं आपको कि इंडिया से नफरत कौन करेगा। इंडिया ने कब किसका क्या बिगाड़ा है? चाइना इंडिया में घुसा था, पाकिस्तान ने इंडिया में अटैक किया था, अफगानिस्तान से पहले शासक आए थे इंडिया में, अंग्रेज इंग्लैंड से आए थे इंडिया में। इंडिया कहां गया? इंडिया ने कब किस पे आक्रमण किया? तो ये चीज दुनिया जानती है। और आजकल तो साहब लोगों के घर, यूएस के पास ऐसे कैमरे थे जो आपके बेडरूम तक निगाह रखते हैं कि आप जो है वो कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं। तो उनको पता नहीं कि पाकिस्तान क्या कर रहे हैं इंडिया में, और चाइना इंडिया में किसने एग्रेशन किया है। ये चीज सबको पता होती है, चाहे ऊपर से कोई बोले या ना बोले, पता सबको होती है। और जब पता होती है ना, तो एक कंट्री की इज्जत बढ़ती है। और ये पता है कि जो एग्रेसिव है उसके प्रति श्रद्धा कम होती है। और इसीलिए पाकिस्तान और चाइना आइसोलेट होते जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। देखिए, कोई भी चाइना और पाकिस्तान का नाम अच्छे सेंस में नहीं लेता है। इवन पाकिस्तान के सबसे अच्छे दोस्त अरब कंट्रीज को ले लो, वो भी पाकिस्तान का नाम अच्छे सेंस में नहीं लेते हैं। वो भी आजकल इंडिया के साथ ही है। तो दोस्तों, हम बैठ गए हैं, आज हम बात कर रहे थे वॉर्स के बारे में। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा एक कदम होगा। और मुझे लगता है कि जो ये अननेसेसरी एक नया फंडिंग का केस शुरू किया था यूएस ने, तो वो भी थोड़ा हल्के होगा। अब चाहे वहां पे लॉ एजेंसीज में इतना होल्ड हो ना हो एनएसए का, तो ये चीज चलती रहेगी, लेकिन इसमें स्लोनेस जरूर आ जाएगी। क्योंकि देखिए साहब, चाहे इंडिया ने कराया है नहीं कराया है, लेकिन ये तो वो भी जानते होंगे, माइक वॉर्स भी ये बात जानते होंगे, डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात जानते होंगे कि आतंकवादी है। 2 दिन पहले वीडियो रिलीज करके कह रहा है कि हम जितने भी मंदिर हैं, मंदिरों में अटैक करेंगे, राम मंदिर में जाके अटैक करेंगे, अमेरिका की धरती से बोल रहा है। और भाई साहब, मैं ये बात बोलता हूं कि एक बार ट्रंप शपथ ले लें, उसके बाद ये आदमी अगर बोल के दिखाता है तो मैं इस आदमी की हिम्मत मानूंगा। क्योंकि ट्रंप ये बोलने नहीं देगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी कंट्री के बारे में अपनी कंट्री में बैठ के आप उसको एक तरीके से आतंकवाद की बात करें कि हम उड़ा देंगे, हम मोदी को मार देंगे, हम इसको मार देंगे।
अगर आप किसी कंट्री में बैठ के ऐसी बात बोल रहे हैं तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ी ना है, ये तो डायरेक्ट आतंकवाद है। तो दोस्तों ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि वॉल्ट्स आ रहे हैं एंड ही इज वेरी मच फेवरेबल इन क्वाड ऑल्सो, और वो इंडिया को बहुत प्यार करते हैं, लाइक करते हैं, जो कि आपने अभी वीडियो में देखा। और चलिए फिर दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने कमेंट जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।